नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम क्लास 8 का और 3.3 लेसन नंबर और द लास्ट लीफ लेसन का जो नेम है, इस चैप्टर का हम वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आए हैं। चलिए फटाफट से सभी आंसर देख लेते हैं। ये चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसकी बहुत बड़े हैं, मतलब ये बहुत 5-6 पेज तक है, लेकिन चलिए हम फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सपोजिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इलनेस ऑफ 1 or 2 weeks, fill up the table do's or don'ts। तो फर्स्ट है go to a doctor for diagnosis, और आंसर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। और थर्ड है डू नॉट ट्राई एनी medications on your own, आंसर है डू नॉट अवॉइड मेडिकेशन ऑन टाइम। थर्ड है टेक ए सुटेबल डाइट, तो फोर है टेक रेस्ट। और थर्ड है अवॉइड जंक फूड। फोर्थ है अवॉइड फिजिकल स्ट्रेस एंड एक्सर्टेशन। फाइव है रेस्ट इन ए प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम, आंसर डू नॉट क्लोज डोर्स एंड विंडोज। सिक्स है हैव क्लियर फुल cheerful thought, courage and positive attitude। अब हम आ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। मेक पेयर ऑफ सेंटेंस ऑफ योर ओन, पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स। तो इसका आंसर है पहला फाइन, द न्यू ड्राइवर्स हैड टू प्ले ए फाइन फॉर ब्रेकिंग द सिग्नल। सेकेंड है वी डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक ओनली इफ द डे वॉज फाइन। सेकेंड है वेव, सो रोहनी वेव्ड हिज फादर बिफोर waved to his father before going for the picnic। Second, the waves in the sea before the tsunami were huge। यहाँ पे देखिए टी साइलेंट, इसको सुनामी पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड है बियर, सो द ग्रिजली बियर hibernates during the winter। and second, Shimi could not bear to see the two cats fighting। फोर नंबर है रोज, तो द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द टीचर रोज फ्रॉम हर चेयर टू एक्सप्लेन द सम। लीड इज यूज इन पेंसिल, ए गुड काइंड लीड्स इज कंट्री टू prosperity। मैच, दो वी लॉस द मैच वी वेयर नॉट ऑफ शिट। Second, buy the shoes only if they match the dress that said mother to Madhu। Seven number second, every second counts when we are writing an examination paper। Second, take the second turn on the right, directed the policeman। 8 number object, the lawyer object to the what the witness said the object on the table were taken away before the girls could see them properly। Question number next is, read the following passage carefully and complete the activity। Simple factual activity, right? Sui and Jhansi were very close friends, right? She what radical wrong? Jhansi was hopeful that she would live, इसका होगा रॉन्ग। एंड जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम द ड्रेडफुल इलनेस निमोनिया। देखिए यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं निमोनिया, तो आंसर ये राइट। सो करेक्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। Sui and Jhansi were very good neighbors, so Sui and Jhansi were very good friends। Second number question, Jhansi were eager to recover for illness, answer is Jhansi had made up her mind that she was not going to recover। Third, Sui ignored Jhansi completely, answer is Sui looked after Jhansi well।
Question number next is complex factual activity. What did the doctor tell Sui about Jhansi? The doctor told Sui that Jhansi had one chance in 10. That chance was false. Jhansi had made up her mind that she was not going to get well. He also told Sui that medicine alone would not help if the patient did not want to live. Describe the EV vine outside the window. The answer is outside the window there was an old EV vine laid and decayed at the roots. It had climbed halfway up the brick wall. It had lost most of its leaves due to the cold autumn. Only a few, यहाँ पे देखिए एन साइलेंट होता है, एम के बाद अगर एन हो तो वो साइलेंट रहता है, जिसको पढ़ते हैं ऑटम. Only a few bare branches were left clinging to the bricks. Activities based on vocabulary. So read the passage and choose the appropriate meanings. Struggling artist trying hard to earn a living, and skeleton branches to bare branches. Second number question is make pair sentences to show the difference between the meaning of the following homonyms from the passage. So answer is first, interest. The bank promised high rate of interest to its customers. And second number, the audience soon lost interest in the boring match. Well. Second number, well, the well was so deep that one could not see the water. And second is the principal sent Sumit home as he was not feeling well. Activity based on context grammar. So first question is there was a colony where many struggling artists lived. So इसका मेन क्लॉज है देयर वाज ए कॉलोनी, और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड, और सबऑर्डिनेटर है वेयर. और सेकेंड नंबर से दो शी लुक्ड आफ्टर हर वेरी वेल जॉन्सी शोड नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो इसमें मेन क्लॉज होगा जॉन्सी शोड नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है दो शी लुक्ड आफ्टर हर वेरी वेल, और सबऑर्डिनेटर होगा दो. She thought that she had fallen asleep, तो मेन क्लॉज होगा she thought, और इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है that she had fallen asleep, सबऑर्डिनेटर है that. And next है personal response. So what type of attitude should a person have when he and she is ill? तो आंसर है when a person is ill, he and she should have a positive attitude. He अथवा she would have cheerful thought and courage and try to keep the mind occupied, only then will medication help. सेकेंड नंबर है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी. राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में जॉन्सी केप्ट काउंटिंग द लीव्स ऑन द ईवी वाइन, ट्रू होगा. ट्रू है जॉन्सी हैड मेड ब्रॉथ फॉर श्यू, फॉल्स है. ओल्ड ब्रह्मन वाज ए सक्सेसफुल पेंटर, फॉल्स है. ओल्ड ब्रह्मन सर्व्ड एज ए मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट, ट्रू होता है. एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन द फर्स्ट बिलीव दैट जॉन्सी हैड अबाउट द वी वाइन्स. इसका आंसर देख सकते हैं आप. हु वाज ब्राह्मण, एक्सप्लेन वाई शी कॉल्ड हिम ए डियर फ्लैट. इसका भी आंसर आप देख सकते हैं. और एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबलरी, इसका भी आंसर आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ पेयर ऑफ सेंटेंस शो द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फोमोग्राफ फ्रॉम द हिस्ट्री. इसका भी आंसर आप देख सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस गिवन बिलो पिक आउट द मीनिंग क्लॉज, द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेटर. इसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर हम आ जाते हैं आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो पर्सनल रिस्पॉन्स
डू यू थिंक दैट Jhansi was talking nonsense or did she have some forewarning that she would die? इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट होगा रॉन्ग और सेकेंड है राइट। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पे, राइट हु सेड द गिवन वर्ड्स एंड टू होम। तो पहला है झांसी सुई, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंप्लीट द फैक्चुअल एक्टिविटी का। व्हाट हैपेंड दैट नाइट, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स सी व्हेन द विंडो वाज ओपन सॉरी। तो इसके बाद आप इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं व्हाट डिड झांसी डिक्लेयर व्हेन शी वाज द लास्ट इविल। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं फिर से आपको नेक्स्ट। मेक पेयर ऑफ सेंटेंस टू शो द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोग्राफ फ्रॉम द पैसेज। इसमें आप देख सकते हैं आंसर इसका माइंड का। फिर उसके बाद राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन द प्रॉपर कॉलम। तो इसमें आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इन द सेंटेंस गिवन बिलो पिक आउट द मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड द सब ऑर्डिनेटर। इसके भी सभी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स पे। इसका क्वेश्चन है डू यू बिलीव दैट थिंग्स आर लकी आर अनलकी फॉर यू, डू यू थिंक सच फैंसीज टर्न आउट ऑफ टू बी ट्रू। इसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एकदम शॉर्ट और सरल है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। इसमें भी आप देख सकते हैं इसके सभी आंसर, पहला रॉन्ग है, दूसरा राइट है, फिर राइट फिर रॉन्ग। ये आप प्रश्न पढ़ के देख सकते हैं। इसमें फिर आप क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड वॉज ए वेरी हार्टलेस पर्सन। आंसर इज the second question is the real evil leaf did not fall off at all। और फिर थर्ड क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट चेंज कम ओवर झांसी द नेक्स्ट डे बाय। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू मिस्टर बर्मैन। इसका भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज सेव्ड झांसी लाइफ एंड हाउ, ये क्वेश्चन और आंसर है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स बर्मैन। इसका भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। फिर हम आ जाते हैं द लास्ट लीफ दैट झांसी सॉ। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर है द लास्ट लीफ दैट झांसी सॉ वाज नॉट ए रियल लीफ बट ए लीफ पेंटेड ऑन द वॉल बाय बर्मैन। इट वाज डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम बट इट इज वेयर tinted with yellow. It hung from a branch some 20 feet above the ground. Naturally, it never fluttered or moved when the wind blew. It was Berman's masterpiece and had been painted the night when the real last leaf had fallen. एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबलरी पे। तो इसका भी आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है सेकेंड पे। फॉल का फॉलन होगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथेंड होगा, फ्लटर का फ्लटर्ड होगा और ब्रिंग का ब्रॉट होता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर पे। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन द सेंटेंस गिवन बिलो पिक आउट द मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेटर। इसका भी सभी आंसर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिव। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर बर्मैन। तो मिस्टर बर्मैन वॉज ए जेनरस, compassionate and kind-hearted man. Even though he was old, he believed that the wind, rain and snow to go out and painted the last leaf on the wall. He died in order that Jhansi could live. नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन whose first letter is silent। तो
इसको निमोनिया में पी जो है ये फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर साइलेंट है। इसमें देखते हैं नॉर्लेड, नॉर्लेड में जी साइलेंट है, जी के बाद अगर एन आया हो तो जी साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं इसको नॉर्लेड मतलब फर्स्ट लेटर साइलेंट है इसमें दोनों वर्ड में। यूज द फ्रेजेज अबव द ग्राउंड इन योर सेंटेंस। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग मानसून द क्लाउड्स आर जस्ट ए फ्यू फीट अबव द ग्राउंड इन ओटी। अब इसके बाद से ये सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सभी आंसर इसके आप देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे पिक आउट। ये देखिए, पिक आउट द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो मेडिसिन alone did not help the main clause if the patient did not wish to leave subordinate clause. फिर रीराइट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ओपन द विंडो, आई वांट टू शी ऑर्डर सुई ओबे, शी ऑर्डर सुई टू ओपन द विंडो एज शी वांटेड टू शी सुई ओबे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। सभी आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स, मेन कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम्स, अटेम्प्ट मेड टू सॉल्व इट, सभी आंसर्स आपको सिंपल और सरल देखने को मिल जाएंगे। क्लाइमेक्स, टर्निंग पॉइंट और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एंड उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कंपोज एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन सुई एंड जानती व्हेन द रियलाइज अबाउट दैट व्हाट बर्मैन हैड डन फॉर झांसी। तो इसके भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो झांसी सुई, डिड यू नो दैट मिस्टर बर्मैन हैड पेंटेड दैट लॉस्ट लीफ सुई? नो, आई न्यू दैट इट जस्ट नाउ टू झांसी सुई, दैट मीन्स दैट ही गॉट वेट दैट नाइट पेंटिंग द लॉस्ट लीफ सुई एंड गॉट निमोनिया आफ्टर दैट। और इसका आंसर्स और यहाँ पे भी है, देख सकते हैं आप। इसको देखने के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये आपका जो आंसर है पूरा इसमें नहीं हुआ है, जगह नहीं बचा था, तो मैंने इसको पेज में लिख के लेके आई हूँ। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये हैं आपके। और उसके नीचे के आंसर, सो कुड के बाद यहाँ पे कैन डू, यू कैन डू के बाद जॉन्सी वॉट शी पेंट योर मास्टर्स पीस ऑफ द बे ऑफ नेपल्स एंड डेलिकेट इट to him. Johnsy, yes, I think that a good idea. Yes, I'll do that. Thank you, Sui.